Hello students, myself K. Mukesh Singh, and this is my second video on space technology. And in this video I am going to deliver the lecture in both Hindi and English medium. So if you yet not watched my first video on basics of space technology, so you should first of all watch that video, because in that video I was share about what is space, what is the objective of space technology, what is Kármán line, what is Van Allen belt, what are their significance, what are the challenges of space. But in this video I am going to share about especially India's space program, their objective, their challenges, and especially India's space organization institutional setup. One more thing I would like to say, those who are Hindi medium background, they also watch this video, because from this video I am going to share and deliver the lecture in both the medium. So let's start. So first of all watch this first slide, and in this slide यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, and it is the result of vision of great scientist and founding father of India's space program, डॉक्टर विक्रम साराभाई. तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं वो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इन्हीं के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था. और जिस समय इसको आरंभ किया गया था उस समय जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था कि भाई जो दूर संचार है, या जो टेलीविज़न प्रसारण है, या जो मौसम से संबंधित जानकारी है, या संसाधनों का जो प्रबंधन है, उसका जो सर्वेक्षण है, उसका जो वितरण है, इन सब को बेहतर बनाना, विकास आधारित सेवाओं को संचालित करना, उपलब्ध करवाना. और इस सब के अलावा एक और उद्देश्य ये था कि भाई जो देश का जो प्रगति है वो प्रगति को विज्ञान पे आधारित करना. तो अगर हम कहें कि इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ अन्वेषणात्मक मतलब इन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये विकासात्मक भी है. इसलिए मैंने यहाँ पे जो बातें 4 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. अनदर इज टू ऑब्जर्व द अर्थ फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस and fulfill the civilian needs and strengthen the defense. The third is to develop indigenous space exploration system for various operational services that work in nations building, and to establish operational space services in self-reliance manner. So what we need to do? So first of all, our objective is to establish effective communication system. It means what? We want to place a satellite in order to establish most effective communication system on Earth, and at the same time we also placing satellite to observe the Earth and assess the Earth-based resources for better management and equitable distribution among the citizens. As well as we also want to strengthen our defense by placing the satellite. How it is possible? Because whatever the artilleries, defense equipments that we have now, so all are satellite based and satellite link, because satellite gives them a better precision, better accuracy, and that's why our space program also strengthen our defense system. The next thing is to develop indigenous space exploration system. It means what? कि when we are developing, जब हम डेवलप करते हैं रॉकेट को, सैटेलाइट को, और जब हम उसे भेजते हैं अंतरिक्ष में अलग अलग अभियानों के लिए, तो वैसे में हमारे पास 2 तरह का ऑब्जेक्टिव होता है. एक होता है तत्कालिक
और एक होता है दीर्घकालिक। तत्कालिक ये होता है कि जो भी सैटेलाइट जिस भी पर्पज़ से भेजा गया है वो अपना काम शुरू करे। और दीर्घकालिक ये होता है जिस सैटेलाइट को हमने भेजा है उस अभियान के बाद अगला क्या अभियान होगा हमारा, और इस प्रकार से हम उस अगले अभियान की तैयारी में जुट जाते हैं। और ग्रेजुअली हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़मीन पे एडवांस होते जाता है, लेकिन साथ साथ वो अंतरिक्ष में भी एडवांस होते जाता है। और उसी का परिणाम है कि भारत जिसने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था, ग्रेजुअली वो आज चंद्रयान, मंगलयान, वीनस अभियान, सूर्य के लिए जो अभियान है आदित्य L1, इस सब पे भी प्रयासरत है, जिसमें से चंद्रयान हमने किया है, 1 में सफलता मिला है, 2 में भी हमें 90% सफलता मिला है, मंगलयान में हम सफल रहे हैं और हमने कई सारे रिकॉर्ड हमने स्थापित किया है। और एक बार में हम 104 उपग्रह तक को हम अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने में सफल हुए हैं PSLV C-37 के माध्यम से। तो ये तमाम हमारी उपलब्धि रही है। तो इसलिए धीमे धीमे क्या हुआ, आज इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौर में शामिल हो चुका है। एंड द फोर्थ वन इज़ टू एस्टैब्लिश ऑपरेशनल स्पेस सर्विसेज इन सेल्फ रिलायंस मैनर। आज हम स्पेस में आत्मनिर्भर हो चुके हैं और अब हम दुनिया के देशों के उपग्रह को हम अपने रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने का हम कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा से यहाँ पे है थोड़ा सा मैं जो भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसका जो विकास है और वो किस प्रकार से हुआ और इसका जो संरचना है किस प्रकार से, हम लोग उस सेटेलाइट पे चलते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, फिर इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बैक होंगे। अब इस हिस्ट्री को समझो आप। सबसे पहले 1962 में इनकोस्पायर ये एग्जिस्टेंस में आया। इनकोस्पायर का पूरा हिंदी में नाम होगा परमाणु ऊर्जा विभाग, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका हिंदी होगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष समिति। अब ये जो समिति है ये अस्तित्व में आया था 1962 में और इस समिति का जो अध्यक्षता था वो किया था डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। और इस समिति के गठन के साथ ही थुम्बा में जो तिरुवनंतपुरम के निकट में है वहाँ पे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का निर्माण शुरू कर दिया गया था जिसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, और शॉर्ट में हम उसको क्या कहते हैं, टर्ल, TERL, मतलब हुआ TERL, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और 21 नवंबर 1963 को इसी स्टेशन से पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किया गया था। और नाइक अपाचे का जो विकास है वो विकास किया था अमेरिका ने। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। इस सफलता के लगभग 2 वर्ष के बाद 1965 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम धीमे धीमे आत्मनिर्भर होते जा रहे थे और कई सारे हम और भी उच्च संस्थानों का विकास में भी हम संलग्न हो रहे थे। फिर जाकर के 15 अगस्त 1969 में इसरो का स्थापना हुआ। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय, इसका हिंदी होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब इस संगठन का एक बात याद रखना, इसका जो ध्येय वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब 1969 में इसरो की स्थापना के बाद 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वाज क्रिएटेड, इसका ये किया गया। और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग है ये, ठीक है। तो मिनिस्ट्री मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन में ये डिपार्टमेंट काम करता है। और
1972 में इस डिपार्टमेंट के स्थापना के बाद इसरो को भी इसी के अधीन में लाया गया था और इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर में और इसरो का जो मुख्य काम है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में के लिए जो भी ज़रूरी शोध है, अनुसंधान है, उस कार्य को देखना। और अंतरिक्ष तकनीक का ये जो पूरा जो प्रोग्राम है, ये स्पेस कमीशन जिसकी हम लोग बात कहते हैं उसके अंतर्गत आता है और ये एक प्रकार से अन्वेषणात्मक नहीं बल्कि विकासात्मक कार्य के लिए ये जवाबदेह है। अब हम जरा बैक होते हैं। जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन में जब इसरो को लाया गया था, उसके साथ साथ कई सारे संस्थानों को भी क्रिएट किया गया और उन संस्थानों को यहाँ पे एक लिस्ट है, आप स्लाइड में देख सकते हो। और इसमें से आपके लिए जो महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा संस्थान है और किसका क्या कार्य है, ठीक है। तो पहले आप देखो, इतने सारे संस्थानों का जो लिस्ट है, प्रैक्टिकली ये याद रखना किसी के लिए भी मुश्किल भरा होगा और आप लोग के ऊपर तो कई सारे ऑप्शनल का भी जवाबदेही होता है, जीएस के कई सारे सेगमेंट का भी जवाबदेही होता है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण जो भी है मैं उसके विषय में आप लोग को बता देता हूँ, शेष आप लोग अपने इससे भी पढ़ सकते हो और अब कुछ ज़रूरत भी इसकी नहीं है। तो पहले देखते हैं, ठीक है। तो पहला है पीआरएल। पीआरएल का मतलब क्या है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये जो लेबोरेटरी है ये अहमदाबाद में अवस्थित है, ठीक है। ये लेबोरेटरी अहमदाबाद में अवस्थित है और इसका जो मुख्य कार्य है वो है कि जो अंतरिक्ष तकनीक के लिए जो भी ज़रूरी अनुसंधान है या उसके कंपोनेंट्स के विकास के लिए जो भी ज़रूरी शोध है उस शोध को करने का है। और इस लेबोरेटरी को उदयपुर में जो स्थित है सौर वेधशाला, उसके प्रबंधन का कार्य का दायित्व भी इसी केंद्र का है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखोगे। पीआरएल के बाद दूसरा आप लोग जो यहाँ पे याद रख सकते हो वो संस्थान है, बेसिकली आप यहाँ पे देखो कौन कौन से संस्थान आपको याद रखना है। मैंने एक छोटा सा आप लोगों को लिस्ट बना दिया है। ये बेसिकली वो 4 महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो आप लोग को याद रखना है। पहला हो गया वीएसएससी तिरुवनंतपुरम। इसका पूरा नाम क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो झनक रहे हैं तो इन्हीं के नाम पर इस सेंटर का नाम है। ये सेंटर बेसिकली तिरुवनंतपुरम केरल में अवस्थित है, ठीक है, जो लगभग थुम्बा के पास में है। और यही वो केंद्र है जो भारत में विकसित किए गए अब तक के सभी पीढ़ी के रॉकेट का विकास का काम किया है, चाहे वो एसएलवी हो या एएसएलवी हो या पीएसएलवी हो या जीएसएलवी हो या आरएलवी हो या एचएलवी हो या यूएलवी हो। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि यूएलवी पे हम लोग चल रहे हैं, यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर रहे हैं। शुरुआत इसने किया था एसएलवी से। एसएलवी का मतलब हुआ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसके बाद इसने डेवलप किया था एएसएलवी को, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। उसके बाद इसने डेवलप किया था पीएसएलवी को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद इसने डेवलप किया था जीएसएलवी को, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तब जाकर के एक और लॉन्च व्हीकल डेवलप हुआ था आरएलवी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। अभी ये काम कर रहा है यूएलवी पे, यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल्स पे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूएलवी, इस पे काम कर रहा है। मतलब जो अब तक जो रॉकेट है सबको यूनिफाई करके हम उसका जो क्षमता है उसको एक में ही डाला जाए। इस पर हम लोग इसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हो, पर अभी वो अपलोड नहीं हुआ है, आगे अपलोड होगा फिर आप लोग देखोगे। चलो अब है दूसरा केंद्र इसका है एसडीएससी, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये सेंटर कहाँ पे है तो श्रीहरिकोटा में है। और आप अगर यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो या यूपीएससी से जुड़ा हुआ किसी भी कंपटीशन के स्टूडेंट्स हो तो आपको यहाँ पे जो याद रखना है ये कि भाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या है, तो याद रखना रॉकेट निर्माण के जवाबदेह है ये। और एसडीएससी क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो यही वो केंद्र है जहाँ से रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है। इस केंद्र का जो पुराना नाम है वो था सार सेंटर। सार का मतलब हुआ श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड एंड रेंजिंग।
ठीक है। और ये सेंटर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे है ये। और इस सेंटर का नाम बदल के 2003 में इसरो के जो पूर्व चेयर पर्सन थे सतीश धवन, उनके नाम पर किया गया। वर्तमान में इस सेंटर पे 2 लॉन्चिंग पैड हैं। दोनों को हम चाहे तो एक साथ प्रयोग भी कर सकते हैं और हम नहीं भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर हमने 2 लॉन्चिंग पैड वहाँ पे अब बना लिया है और इसी केंद्र से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। इतना आप लोग को इसमें याद रखना है। अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से आएगा आप लोगों को कि रॉकेट को लॉन्च कहाँ से किया जा सकता है या रॉकेट का निर्माण कहाँ से किया जाता है। तीसरा है आईजेक। यह है इसरो सैटेलाइट सेंटर। यह है कहाँ पे? बेंगलोर में है। और ये नामी सैटेलाइट सेंटर, मतलब ये उपग्रह का डिजाइनिंग, उसका निर्माण, उसका कंप्लीट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ये करने का काम करता है। चाहे वो उपग्रह रिमोट सेंसिंग हो या उपग्रह संचार उपग्रह हो या नौवहन उपग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, सबका निर्माणकारी काम को जो है यही संस्थान है आईजेक, ये करने का काम करता है। और चौथा है एसएसी सैटेलाइट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये सेंटर बेसिकली अहमदाबाद में स्थित है। और ये जब हम उपग्रह को अंतरिक्ष में जब प्रक्षेपित कर देते हैं तो प्रक्षेपित करने के बाद सवाल उठता है कि भाई उससे जो डाटा है उसको प्राप्त कौन करेगा, प्रोसेस कौन करेगा, या कई तरह के सवाल ये होता है कि भाई भेजने के बाद उसका जो देखभाल है, रख रखाव है, उसके लिए कौन जवाबदेह होता है। तो यही वो केंद्र हैं जो अंतरिक्ष में रॉकेट को भेजने के बाद वो सही से जाकर कक्षा में आरोपित हुआ कि नहीं हुआ, उपग्रह अपने मूल बिंदु पे जाके स्थापित हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको देखने का काम करता है। और इसके बाद तब आता है शेष संस्थान, जिसमें से एक और महत्वपूर्ण है, वो है एंट्रिक्स। आप यहाँ पे स्लाइड में फिर से बैक होकर देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ एंट्रिक्स। ये एंट्रिक्स क्या है? बेसिकली ये इसरो का कॉमर्शियल यूनिट है। ये कॉमर्शियल का मतलब हुआ वाणिज्यिक, मतलब अंतरिक्ष से संबंधित जो भी खरीद बिक्री या जो भी ट्रेड या कॉमर्स होता है कि भाई किस देश को उपग्रह लगाना है, किस देश से उपग्रह अपना भेजना है और उसके रॉकेट का उपयोग करके अपने उपग्रह को किस कक्षा में भेजना है। तो इस तरह के कार्य में क्या होता है? खरीद बिक्री होता है, इस तरह कार्य में पैसे लगते हैं और इस तरह का तमाम जो निर्णय होता है वो सारा निर्णय एंट्रिक्स जो है ये लेने का काम करता है। और इसका भी जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इसके अलावा यहाँ पे जो शेष तमाम जो संस्था देख रहे हो ये सारी संस्थाएँ हैं जिसका अलग अलग कार्य है। आप चाहो तो साइंस टेक की किताब कोई भी ले सकते हो, इसमें ले सकते हो और उस किताब से भी पढ़ सकते हो या कोई भी कोचिंग का नोट्स होगा उसे भी पढ़ सकते हो। पर मेरे समझ से उसकी ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में आप लोगों को मैक्सिमम यहीं तक सवाल पूछा जाता है कि जो संस्थागत विकास का क्रम क्या है, कौन कौन से संस्थान किस कार्य के लिए जवाबदेह है। तो मैंने अभी तक जो आपको 5 या 6 जो संस्थान का बताया है यही वो महत्वपूर्ण संस्थान जिससे सवाल पूछा जाएगा अथवा नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि मेरा व्यक्तिगत 18 साल का जो यूपीएससी में अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो अगले स्लाइड में हम लोग फिर मिलेंगे शेष बातों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।